السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازی۔ بانی پی ٹی آئی کے پاکستان مخالف ایجنڈے کا ایک اور ثبوت۔ رؤف حسن کے بھارتی تجزیہ نگار راہل رائے چودھری سے گفتگو منظر عام پر آ گئی۔ رؤف حسن کے فوج کی اعلیٰ قیادت پر الزامات۔ بانی پی ٹی آئی کے ریاست مخالف ایجنڈے کی تکمیل کے لیے پوری طرح متحرک۔ واٹس ایپ کے ذریعے رابطوں میں ہوش ربا انکشافات۔ خیبر پختونخوا میں اندھیر نگری چوپٹ راج، صوبے میں کمیشن مافیا سرگرم۔ علی امین گنڈاپور نے جلسے میں جو زبان استعمال کی وہ وزیر اعلیٰ کے عہدے کی توہین ہے۔ پختون قوم روایات کی امین ہے، اسٹیج پر کھڑے ہو کر خاتون کو للکارنے والا دہشت گردوں اور مجرموں سے ڈرتا ہے۔ کی بورڈ سے ڈیجیٹل انقلاب لانے والے کچھ نہیں کر سکتے۔ بہتر ہوتا علی امین گنڈاپور یہ بتاتے کہ صوبے سے دہشت گردی کا خاتمہ کیسے کیا جائے گا۔ وفاقی وزراء عطا اللہ تارٹ اور انجینئر امیر مقام کی نیوز کانفرنس۔ علی امین گنڈاپور نے جلسے میں بڑھ کے ماری، یہ لوگ دوسرا 9 مئی کرنا چاہتے ہیں۔ جلسے میں قانون توڑنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کی صورتحال پر ہنگامی اجلاس بلائے۔ گورنر فیصل کریم کنڈے۔ ناکام جلسے پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صحافیوں پر برس پڑے، میڈیا کو بکاؤ قرار دے دیا، سنگین اور نازیبا الزامات کی بوچھار کر دی۔ علی امین گنڈاپور کے رویے پر صحافیوں میں شدید غم و غصہ، قومی اسمبلی اور سینٹ سے صحافیوں کا واک آؤٹ، علی امین گنڈاپور سے معافی کا مطالبہ، غیر ذمہ دارانہ الفاظ کی شدید مذمت، میڈیا اور خواتین کے بارے میں طنزیہ ریمارکس ان کی دماغی صحت پر سوالیہ نشان ہے۔ صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری۔ پشاور، کراچی سمیت ملک بھر میں صحافتی تنظیمیں سراپا احتجاج۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور صدر مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کا شیخو پورہ میں سفائر بے کا دورہ۔ مقامی لوگوں سے زبردستی زمینیں لینے کی شکایات کا نوٹس۔ تھرڈ پارٹی آڈٹ کا حکم۔ حکام کی جانب سے ترقیاتی امور پر بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ کی روڈا منصوبے میں بہترین تعمیراتی معیار یقینی بنانے کی ہدایت۔ مانیٹرنگ کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دینے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی دور میں معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ اپوزیشن ارکان کی تقاریر چور مچائے شور کے مترادف ہیں۔ ترقی کا پہیہ روکنے والے کس منہ سے ہم پر تنقید کر رہے ہیں؟ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا قومی اسلام آباد کے شہریوں کے بھی بنیادی حقوق ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں جلد سے جلوسوں سے متعلق قانون بن چکا ہے۔ انتظامیہ کی ثوابدید کی بجائے قواعد و ضوابط کو قانونی شکل دی گئی ہے۔ قانون سازی اکثریت کا استحقاق ہے۔ امریکہ اور برطانیہ میں بھی اجتماع اور جلوسوں سے متعلق قوانین موجود ہیں۔ سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر عرفان صدیقی کا اظہار خیال۔ غلطیوں کا اعتراف کیے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ ہر ادارے میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے۔ من پسند بینچز میں مقدمات مقرر کرانے اور بلا وجہ التوا دینے کی روش ختم ہو چکی۔ عدالتی امور میں بہتری لانے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ مفاد عامہ کے مقدمات کی سماعت براہ راست نشر کرنے کا سلسلہ شروع کیا تاکہ عوام عدالتی کارکردگی اور شفافیت کا خود جائزہ لے سکیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نئے عدالتی سال کے آغاز پر تقریب سے خطاب۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی۔ راجوری میں 2 نوجوان جعلی مقابلے میں شہید۔ حریت غیرت کا ماورائے عدالت قتل کے بڑھتے واقعات پر شدید تشویش کا اظہار۔ عالمی برادری سے کشمیریوں کی نسل کشی رکوانے کا مطالبہ۔ بنگلہ دیش کا بھارت سے معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ کی حوالگی کا مطالبہ۔ سیاسی مخالفین کی بڑے پیمانے پر حراست اور ماورائے عدالت قتل کے واقعات میں مطلوب ہیں۔ مرکزی ملزم کو وطن واپس لانے کے لیے قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف پروسیکیوٹر بین الاقوامی فوجداری ٹریبیونل محمد تاج الاسلام۔
اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے، مزید 33 فلسطینی شہید، 145 زخمی۔ غزہ میں تعلیم اور صحت کا نظام تباہ، 6 لاکھ سے زیادہ بچے تعلیم سے محروم، 22 لاکھ افراد کو فوری خوراک کی ضرورت۔ عالمی ادارہ خوراک کا ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کا مطالبہ۔ صہیونی فوج کے شام اور لبنان پر بھی حملے، 14 افراد شہید، 47 زخمی۔ پولیو کے خاتمے کے لیے اجتماعی کاوشیں وقت کی ضرورت ہے۔ ملک بھر میں 7 روزہ خصوصی انسداد پولیو مہم، 3 کروڑ بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف، 2,86,000 پولیو ورکرز مہم کا حصہ۔ والدین اور علماء اکرام سے خصوصی تعاون کی اپیل۔ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی، پاکستان اور جنوبی کوریا کا میچ 2-2 گول سے برابر۔ قومی ٹیم کی طرف سے دونوں گول حنان شاہد نے کیے۔ پاکستان تیسرا میچ 11 ستمبر کو جاپان کے خلاف کھیلے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام چیمپئنز کپ ایونٹ کا جمعرات سے آغاز، 5 ٹیموں کے درمیان 14 میچز ہوں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ٹیم مینٹور سے انتظامات پر مشاورت، پچز اور گراؤنڈ کا معیار بہتر بنانے کی یقین دہانی۔ اور یو ایس اوپن عالمی نمبر 1 اٹلی کے جینک سنر نے ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں امریکہ کے ٹیلر فرٹس کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بڑھیں گے خبروں کی تفصیل کی جانب اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ بانی پی ٹی آئی کی پاکستان مخالف سرگرمیاں۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل رؤف حسن کا امریکی صحافی رائن گریم، بھارتی صحافی کرن تھاپر، مائیکل کوگرمین کے بعد اب پاکستان مخالف اور را کے سپانسرڈ بھارتی تجزیہ نگار راہول رائے چودھری کے ساتھ بھی واٹس ایپ کے ذریعے رابطوں کے ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں۔ رؤف حسن نے اپنے بھارتی دوست کو جو واٹس ایپ پیغامات کیے ان میں فوج کے اعلیٰ قیادت پر الزامات لگائے ہیں۔ واٹس ایپ پیغامات سے واضح ہے کہ رؤف حسن بانی پی ٹی آئی کے ریاست مخالف ایجنڈے کی تکمیل کے لیے پوری طرح متحرک ہے۔ واٹس ایپ پیغامات سے یہ انکشاف بھی ہوا کہ رؤف حسن نے حیران کن طور پر راہول رائے چودھری کے کہنے پر اپنا پاسپورٹ بھی اس کے ساتھ شیئر کیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ رؤف حسن کا بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ قریبی تعلق ہے جو اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے سپانسر کرتی ہیں۔ یہاں یہ واضح دکھائی دے رہا ہے کہ کیسے بھارتی خفیہ ادارے اور میڈیا بانی پی ٹی آئی کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے سہولت کاری فراہم کر رہے ہیں۔ دفاعی تجزیہ نگار رؤف حسن کے راہول رائے چودھری کے ساتھ پیغامات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ پیغام رسانی دراصل راہول رائے چودھری سمیت دیگر بھارتی صحافیوں کی پشت پر بیٹھے را کے اہلکاروں کے لیے معلومات کا خزانہ ہے۔ پی ٹی آئی کے ترجمان نے ان پیغامات کے ذریعے حساس معلومات ایک بھارتی تجزیہ نگار کو پہنچائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ واٹس ایپ پیغامات اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ رؤف حسن نے بھارتی تجزیہ نگار راہول رائے چودھری کو آمادہ کیا کہ وہ پاک فوج کے خلاف منفی تاثرات پر مبنی بیانیے کی تشہیر کرے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق حساس معلومات پہنچانے کا مقصد ریاست مخالف بیانیے کو بھارتی میڈیا میں پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کرنا تھا۔ راہول رائے چودھری پاکستان مخالف جانا پہچانا نام ہے جو بھارتی خفیہ ایجنسی را کے پے رول پر ہے اور کور کے طور پر ایک تھنک ٹینک IISS سے منسلک ہے۔ یہ پیغامات نہ صرف ریاست کو بدنام کرنے کی سازش تھے بلکہ انقلاب کے نام پر بھارتی میڈیا میں پروپیگنڈا کرنا تھا۔ ان ثبوتوں کے پیش نظر رؤف حسن اور اس کے سہولتکاروں کے خلاف مکمل اور کڑی تحقیقات کی جانی چاہیے۔ رؤف حسن کی جانب سے راہول رائے چودھری کے ساتھ اس ڈیجیٹل گفتگو کے حوالے سے تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ باتیں واضح طور پر غیر ملکی طاقتوں کو پاکستان کے بارے میں اکسانے کے شواہد ہیں۔
खैबर पख्तूनख्वा में अंधेर नगरी चौपट राज पीटीआई के जलसे में सरकारी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने इंजीनियर अमीर मकाम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीटीआई एक फॉरेन फंडेड जमात है और गालम गलोच इसका मंशूर है। वफाकी वज़रा ने संजानी जलसे में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल की तहकीकात का मुतालबा किया है। मजीद क्या तफसीलात हैं शेयर कर रहे हैं फहद अजीज। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि जलसा गाह भरने के लिए सरकारी वसाइल और मशीनरी का बेदरीग इस्तेमाल किया गया। स्टेज पर चढ़कर खातून को ललकारने वाला दहशत गर्दों और मुजरमों से डरता है। स्टेज पे चढ़ के एक खातून को ललकारते हो, उधर दहशत गर्दों से डरते हो, इस तरह की वाहियात और लुग़व गुफ्तगू करते हैं जब आप अंदर से खोखले होते हैं। नाकाम जलसे का गुस्सा था और निकाला वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा पे, निकाला वो फ़ौज के ऊपर। तो यही फ़ौज है जो वहाँ पे कुर्बानियाँ दे रही है, रोज़ लाशें उठा रहे हैं और आप बैठ के तमाशबीन की तरह तमाशा देख रहे हैं। आप एक सूबे के वज़ीर आला हैं, संजीदगी अपनाएं, आके दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो वहाँ पे एक अज़्म इस्तेहकाम के तहत हम एक विजन लेके चले उसका हिस्सा बने और अपने सूबे में अमन कायम करें। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल दौरे इक़्तिदार में एक भी मयारी मनसूबा नहीं बनाया। मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्याती मनसूबों से मुल्की मईशत को इस्तेहकाम मिला है। 12.5 साल की हुकूमत के बाद हम कह सकते कि रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जैसा एक अस्पताल तहरीक इंसाफ ने बनाया है, PKLI के लेवल का एक अस्पताल आपने बनाया है। काश हम ये कह सकते कि दानिश स्कूल सिस्टम जैसा एक आपने वहाँ पे स्कूल सिस्टम दिया है। आपकी पार्टी जो है वो गालम गलो तशद्दुद के अलावा उसको कुछ आता ही नहीं है। कोई अवाम की खिदमत की होती सामने आ जाती। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में मोटरवेज का जाल किसने बिछाया है? नवाज शरीफ ने बिछाया। शहबाज शरीफ साहब के दौर में महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई, इस बात का भी आपको गुस्सा है। आप तो चाहते थे कि IMF को खत लिख के मुल्क को डिफॉल्ट कर दें। ये किसका एजेंडा था? ये वो गैर मुल्की दुश्मनों का एजेंडा था जिसके तहत आप IMF को खत लिखना चाहते थे। वफाकी वजीर अमूर कश्मीर और सैफरान इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत मुल्क के लिए नासूर है। करप्शन के पैसे से खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ वाले आपस में दस्तो गिरेबा हैं। मैं कहता हूँ ये तो बिल्कुल मुल्क के लिए नासूर है। एक तरफ जितने रिसोर्सेज है उनकी करप्शन की नज़र हो रहा है और आपस में उन पर लड़ाइयाँ होती है। थोड़ा कुछ बच गया तो आपके सामने कि इस तरह दहशत गर्दी और जलसों पर और उस पर लगाया जा रहा है। जो हमारे रिसोर्सेज इस्तेमाल किए KP गवर्नमेंट को, इसको मैं कहता हूँ कि इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। वफाकी वज़रा का कहना था कि गालम गलोच की सियासत तहरीक इंसाफ का मंशूर है। जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्तेमाल होने की तहकीकात का मुतालबा करते हैं। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अली अमीन गंडापुर ने कल जलसे में बड़के मारी। ये लोग दूसरा 9 मई करना चाहते हैं। जलसे में कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल के हवाले से हंगामी इजलास बुलाए। मजीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे मरियम मलिक। इस्लामाबाद के निजी शॉपिंग मॉल में 4 रोज़ा आर्ट नुमाइश के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि PTI के आला ओहदेदारान को जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। हमारे सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जब खराब हो रही थी तो वहाँ तवज्जो नहीं दी गई। बानी PTI को जेल से खुद जाकर निकालने की बात पर अफसोस हुआ। इस तरह के गैर जमहूरी रवायात मुल्क की सियासत के लिए मुस्बत नहीं। जो शख्स अपने गाँव में रिट नहीं बरकरार कर सकता, 2 चीज़ें हैं, या तो वो रिट बहाल नहीं कर सकता या वो दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है। तो मैं दूसरी बात कहूँगा कि वो दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है। आज तक उन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई सूबाई काबीना की या सूबाई असम्बली की कोई मीटिंग नहीं हुई जिस पे लॉ एंड ऑर्डर डिस्कस किया जाए। वज़ीर आला सूबाई असम्बली से एतमाद खो चुका है, उसको चाहिए कि वो फिल फॉर एतमाद का वोट ले। गवर्नर KP का कहना था कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से कहता हूँ कि KP के हालात से मुताल्लिक इमरजेंसी मीटिंग तलब करें। 9 मई में जो भी मुलव्विस है उनको सजा मिलनी चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जिन लोगों ने कानून को तोड़ा है, जिन्होंने ग्रेजुएशन पे हमले किए हैं, अगर आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसी चीजें होंगी। गवर्नर KP का मजीद कहना था कि आइन और कानून की पासदारी करना मेरा काम है। जब तक बैठा हूँ कानून की पासदारी करूँगा। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
नाकाम जलसे से भुगला कर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर उतर आए। अपनी सियासी नाकामियों का सारा गुस्सा सहाफ़ी बिलखुसूस ख़वातीन पर निकाल दिया। वज़ीर आला की जानिब से तज़हीक आमेज़ अल्फाज पर मुल्क भर में सहाफ़ती बिरादरी सरापा एहतजाज है। सदफ अफजल की रिपोर्ट देखिए। तहरीक इंसाफ ने अपनी इंतशार की रिवायत को बरकरार रखते हुए एक बार फिर संगजानी के नाकाम जलसे का सारा गुस्सा सहाफियों पर निकाल दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गुज़िश्ता रोज जलसे से खिताब में सहाफियों के बारे में गैर जिम्मेदाराना और नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसके बाद मुल्क भर के संजीदा हलकों में ये बहस जोर पकड़ गई कि क्या तहरीक इंसाफ में कोई जिम्मेदार और बुर्दबार सियासतदान नहीं है जो मुआशरे में तफरीक के बजाय अखुवत का पैगाम दे। मीडिया और सहाफी बिकाऊ जो सामने बैठे होते हैं, अपना कलम वो बेच चुके हैं, ये पैसे लेकर इन लोगों को बचाते हैं। मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारी सहाफत पे। ये कुछ बिकाऊ और ये कुछ दूसरी जो बैठी हुई है, ये जो सहाफत कर रही है, मैंने नोट भी खा मेरा मूड बने, मैंने नोट भी खा मेरा मूड बने। इन लोगों को करके पूरी दुनिया को बताओ कि सहाफी नहीं लिफाफी है, लिफाफी। जलसे में सहाफियों पर लगाए गए इल्जामात और खातून सहाफियों के बारे में तंजिया रिमार्क्स पर सहाफी तंजीमों और अरकान पार्लियामेंट ने इसकी शदीद मजम्मत की है। पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन की अपील पर सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास के दौरान सहाफियों ने प्रेस गैलरियों से एहतजाजन वॉकआउट किया और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से माफी मांगने का मुतालबा किया। बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सबूत के अगर आपने इस तरह के इल्ज़ामात लगाए तो मैं समझता हूँ कि जितनी भी जर्नलिस्टिक एसोसिएशंस हैं, सहाफ़त की एसोसिएशंस हैं, आपकी बिल्कुल नेशनल लेवल पे भी हैं, प्रोविंशियल लेवल पे भी हैं, उनको फिलफोर इनका बॉयकॉट करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर जब भी बात करते हैं इंतहाई नाजेबा अल्फाज होते हैं उनकी तकारीर में, और सिर्फ अपने सियासी ख़वातीन जो साथी हैं उनके ख़िलाफ़ इस तरह नहीं बोलते, बेलगाम नहीं बोलते, वो ख़वातीन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ भी बोलते हैं बेलगाम। सहाफ़ी बुनियादी तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करता है गैर जानिबदारी के साथ, लेकिन अगर किसी को उसकी रिपोर्टिंग पसंद नहीं आती या उसका अंदाज़ पसंद नहीं आता तो किसी शख्स को भी हक नहीं है कि वो तस्लील करे। जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बयान दिया वो दुरुस्त नहीं है। पेशावर के सीनियर सहाफियों ने भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के नाजेबा अल्फाज की शदीद मजम्मत की है। सीएम साहब को चाहिए कि वो फौरी तौर पे अपने इस बयान को वापस लें और सहाफियों से माफ़ी मांगे। सहाफ़ी बिरादरी को गाली देना, उन्हें बुरा भला कहना, ये मुनासिब था इस तरह के जलसे में? और फिर वज़ीर आला साहब की अजीब सी आदत है, वो अपनी बात न सिर्फ कहते हैं बल्कि इस अंदाज से, इस लहजे से और इतनी स्लैंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि उनको ये समझ ही नहीं आती कि मैं अल्फाज का चुनाव क्या कर रहा हूँ। बदकिस्मती से जो ज़ुबान इस्तेमाल की है वो एक चीफ मिनिस्टर के साथ या एक सियासतदान या रहनुमा जिसको कहते हैं उसके साथ ज़ेब नहीं देता। अगर हिम्मत है तो नाम लेकर बता देना कि कौन से सहाफ़ी लिफाफा सहाफ़ी हैं। जो उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की है तो मैं समझता हूँ कि ये वज़ीर आला की तरबियत का नतीजा है कि उन्होंने कौन सी तरबियत हासिल की है कि उस किसी भी एक जो माशरे का पढ़ा लिखा तबका है, जो माशरे की आंख और कान है, उसके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी और अरकान गवर्निंग बॉडी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अल्फाज की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। अरशद अंसारी का कहना है कि अली अमीन गंडापुर जिन सहाफियों को पैसे देते हैं या जो सहाफी ब्लैकमेल करते हैं उनके नाम सामने लाएं। मेरा ख्याल है कि ज़हनी बीमार आदमी कर सकता है कि उसका ज़हन ख़राब है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उन्होंने कितने गंदे अल्फाज किए, हमें तो ये अदायगी करते हुए अल्फाज बोलते हुए शर्म आती है, उसको वज़ीर आला तो शर्म नहीं आई। तहरीक इंसाफ के लोग पॉलिटिकल लोग हैं ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि गुफ्तगू कैसे करनी है, कैसे किसी को जवाब देना है। सेक्रेटरी विमेंस पार्लियामेंट्री कॉकस डॉक्टर शाहिदा रहमानी ने अली अमीन गंडापुर की खवातीन सहाफियों के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने की शदीद मजम्मत की है। डॉक्टर शाहिदा रहमानी ने कहा कि खवातीन के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू को किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस किस्म की फजूल गोई अली अमीन गंडापुर की तरबियत की अक्कासी करती है। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, इस्लामाबाद पुलिस ने रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया। इन्हें पार्लियामेंट हाउस के बाहर से हिरासत में लिया गया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत में GDP
6% थी। तहरीक इंसाफ ने मुल्क को मुआशी बहरान की तरफ धकेल दिया और तरक्याती बजट को तकरीबन खत्म कर दिया था। तफसील बता रहे हैं अनीस आवान। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुर्तजा शाह की सदारत में हुआ। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि हमारे दौरे हुकूमत में आलमी मालियाती इदारे भी मुल्क की तरक्की की गवाही दे रहे थे। 2018 में जब हमने हुकूमत छोड़ी है तो पाकिस्तान का तरक्याती बजट 1000 अरब पे छोड़कर गए थे। आज 6 साल के बाद पाकिस्तान का तरक्याती बजट 1100 अरब के ऊपर खड़ा है। 2013 में जब हमारी हुकूमत आई थी तो तरक्याती बजट का हुजम 340 अरब था। इनके 4 सालों में जो मईशत का बेड़ा गर्क हुआ उसका नतीजा ये निकला कि डेवलपमेंट बजट श्रिंक होना शुरू हो गया और 1000 अरब से घट के तकरीबन 700 अरब के ऊपर आ गया। इरसा के हवाले से नुक्ता एतराज का जवाब देते हुए वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इस मामले को मुतलका कमेटी को भेज दिया जाए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बड़ा किरदार अदा किया था 91 अकॉर्ड में कंसेंसस के हवाले से, तो मैं समझता हूं कि उनकी हमेशा ये कोशिश रही है कि मामलात को मामला फहमी के साथ और एक्विटी और जस्टिस के मुताबिक किया जाए। तो ये इरसा के हवाले से जो मेंबरान के सर यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं एग्रीकल्चर के फ़रोग के लिए, और कल को एक हमारी फ्रूट बास्केट है जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स भी लिंक्ड हैं, हमारी इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ लिंक्ड है। सर ये कंटेंशियस इशू है, अगर इजाज़त दें तो ये सर कंसर्न कमेटी के अंदर तमाम लोगों को मदऊ किया जाए। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने बताया कि हैदराबाद का एयरपोर्ट मुकम्मल फाल है। PIA की हैदराबाद फ्लाइट मुनाफा बख्श नहीं है, इसलिए इसको बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि PIA पर 800 अरब का खसारा है। वजीर मुमलिकत डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि खैबर पुख्तनख्वा के वजीर आला ने जलसे में सहाफ़ियों और ख़वातीन सहाफ़ियों के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। अली अमीन गंडापुर साहब की जो स्टेटमेंट सहाफ़ियों के बारे में इज्तिमाई तौर पे जो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक गैर ज़िम्मेदाराना बल्कि एक इश्तियाल अंगेज़ बयान जो उन्होंने दिया, और उसके साथ साथ जो ख़वातीन के हवाले से जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की उससे हमारी जो ख़वातीन कुलीग्स हैं प्रेस गैलरी में उनकी भी बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी हुई। हम सब के जज्बात उनके साथ हैं। ये बदज़बानी जो है ये वज़ीर आला KP की तरफ से की गई है, लिहाजा इसकी जो माफ़ी है ये भी उनकी तरफ से आनी चाहिए। इजलास में कौमी यूनिवर्सिटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। बिल वफाकी वजीर तालीम व फनी तरबियत खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पेश किया। कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी हो गया। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क की तरक्की के लिए इस्लाहात के एजेंडे पर काम जारी है। वफाकी वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि ये नहीं हो सकता कि कोई तबका किसी भी वजह से टैक्स देने से इनकार कर दे। टैक्स निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए काबिल लोगों को लाया जा रहा है। इजलास की तफसील बता रहे हैं मलिक उमर। सेनेट इजलास में मुख्तलिफ तहारीक पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि टैक्स नट को बढ़ाए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। मुल्क की तरक्की के लिए टैक्स इस्लाहात भी नागुज़ीर हैं। ये नहीं हो सकता कि कोई तबका टैक्स अदा न करे। 24 करोड़ लोग हैं इस मुल्क में और हम सब के लिए जवाबदेह हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि हम टैक्स नहीं देंगे बिकॉज वी डू नॉट बिलीव इन द सैंक्टिटी ऑफ द टैक्स अथॉरिटी। ये मुल्क फिलैंथ्रोपी पे नहीं चल सकता। द ओनली वे इट कैन बी द लास्ट प्रोग्राम फॉर द IMF if we are able to execute the structural reforms. Taxation going from 9% of GDP, tax to GDP, to 13% plus so that we can be part of community of nations, ताकि हम sustainable हो सके। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि अमन व आमा की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। हाल ही में पार्लियामेंट से मंजूर होने वाले पुरअमन इज्तिमा व अमन आमा बिल इसी सिलसिले की एक कड़ी है। कि ये कोई ऐसी अनहोनी चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान ने की है या जो इस असम्बली ने या इस हाउस ने की है या जिस पे मैंने दस्तखत के 5 जमातें हैं जो मुहर्रिक हैं। कानून साजी में अच्छी है या बुरी है वो कानून साजी अक्सरियत ही करती है। अक्सरियत का इस्तेकाक होता है, उसमें नकायस हैं या खामियां हैं वो वक्त तयन करेगा। सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने कहा कि ईरान में जाने वाले ज़ायरीन के पासपोर्ट ईरान दाखिल होने पर रख लिए जाते हैं और वापसी पर कई एक को मिलते ही नहीं।
इस बारे में हुकूमती सतह पर बात की जानी चाहिए। सदर नशीन शहरी रहमान ने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का फर्ज है। इस बारे में फौरी इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने औरतों के हवाले से गलत ज़बान इस्तेमाल की है। उनके दूसरे रहनुमा भी औरतों के बारे में गलत बात करने में कोई आर महसूस नहीं करते। सेनेट इजलास की कार्रवाई कल शाम 3 बजे तक मुलतवी हो गई है। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अवाम को बेहतरीन रिहायशी सहूलतों की फराहमी पंजाब हुकूमत की तरजीह। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रावी रिवर सिटी प्रोजेक्ट के लिए दुनिया के बेहतरीन माहिरीन की खिदमत हासिल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने शेखुपुरा के नवाह में सफ़ायर बे का दौरा किया। वज़ीर आला ने मकामी लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीनें लेने की अवामी शिकायत पर इजहार नापसंदीदगी करते हुए थर्ड पार्टी ऑडिट कराने और रोडा मनसूबे में आने वाली कच्ची आबादियों को मुनासिब मकामात पर मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए। इस मौके पर तामीराती मयार की मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी टीम तश्कील देने की तजवीज़ पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज और मोहम्मद नवाज शरीफ ने रिवर ट्रेनिंग वर्क्स एंड ब्रिज साइट का दौरा भी किया और सफ़ायर बे पर होने वाली तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया और कोफर डैम साइट का भी मुआयना किया। मुतल्लिका हुकाम की जानिब से रिवर ट्रेनिंग वर्क्स डेवलपमेंट प्लान पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब हुकूमत का अवामी फलाह बहबूद की जानिब एक और अमली कदम, सूबे में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पर कामयाबी से अमल दरामद जारी है। तफसील बता रही हैं लाहौर से वरदा सलीम। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सूबे में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का मकसद बेघर अफराद को आसान इकसात पर बिला सूद कर्जे की फराहमी है ताकि कम आमदनी वाले अफराद बासानी अपना घर तामीर कर सकें। प्रोग्राम के कवादो ज़वाबत से आगाही के लिए पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग और असिस्टेंट कमिश्नर्स के दफातर में खुसूसी डेस्क कायम कर दिए गए हैं, जहाँ अहल अफराद खुसूसन खवातीन को तरजीही बुनियादों पर मालूमात फराहम की जा रही है। ख्वाहिशमंद अफराद अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से मुतल्लिक मालूमात के लिए इंटरनेट के साथ साथ हेल्पलाइन नंबर 0800091100 से भी इस्तेफादा कर सकते हैं। ਜਿਹੜੀ ਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਰਜ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲੱਗੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ के कोई सूद नहीं है, पूरे पैसे लेते जाएंगे। वज़ीर आला ने जो स्कीम बनाई है पंजाब के लिए हमें बड़ी पसंद है और इंस्टॉलमेंट भी अपना ईजी दे सकता है और इसका जो रिटर्न है वो भी बड़ा सिंपल है, उससे भी हम इंशाअल्लाह बहुत खुश हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के जरिए शहरी इलाकों में 5 मरला जबकि दही इलाकों में 10 मरले प्लाट की मलकियत रखने वाले अफराद को 15 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। कर्ज की ये रकम 14,000 रुपए की आसान माहाना एक साथ में 7 साल के दौरान वापस करना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का यह मंसूबा अपनी छत अपना घर ख्वाब से हकीकत का सफर साबित होगा। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नवाब शाह में गेट कीपर मदद अली की हाजिर दिमागी ने कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को बड़े हादसे से बचा लिया। नवाब शाह रेलवे स्टेशन से पहले एक 10 व्हीलर ट्रक ट्रैक पर उलट गया। मुसाफिर ट्रेन फाटक के करीब पहुंची तो गेट कीपर मदद अली ने हाथ में सुर्ख झंडी उठाए ड्राइवर को फौरन रुकने और स्पीड कम करने का इशारा करने का सिग्नल दिया। इस बर वक्त रद्दअमल से शालीमार एक्सप्रेस खौफनाक हादसे से बच गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नवाब शाह के रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे फाटक पर अपनी जान की बाजी लगाते हुए शालीमार एक्सप्रेस को बड़े हादसे से बचाने वाले गेट कीपर मदद अली को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मदद अली ने अपनी जान की परवाह न करते हुए सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बचाई और अपनी जिम्मेदारियों को खुलूस नीयत से निभाया। मदद अली जमाली पर पूरी कौम को फख्र है और उनके बेलौस जज्बे से सीखने की जरूरत है। रियासत मुखालिफ एजेंडे का हिस्सा बनना जुर्म है। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि रऊफ हसन के मुल्की सालमियत और इदारों के बारे में व्हाट्सएप पैगामात उनकी पाकिस्तान मुखालिफ सोच का सबूत है। PTI की रियासत मुखालिफ बयानिए की एक तारीख है। जो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पे जिस तरह बढ़ चढ़ के काम किया जा रहा है, रऊफ हसन साहब ने उसका एतराफ़ भी किया है और रऊफ हसन साहब ने टीवी चैनल पे उस वक़्त की सहूलतकारी का भी एतराफ़ किया है। रऊफ हसन साहब ने कहा है कि रिटायरमेंट के बाद भी जनरल फायद साहब के साथ उनका राब्ता था और उसके बाद उनसे जब पूछा गया कि आपकी क्या उनसे गुफ्तगू होती रही तो उन्होंने कहा कि हाय राउफ, हाउ आर यू, हाउ इज़ द पार्टी। मतलब ये तमाम तर वो चीज़ें हैं, आप अगर
سیاسی حوالے سے بھی بات کریں تو جو اس پریسر کا مقصد ہے وہ بھارتی جو پاکستان مخالف بھارتی ایجنڈا ہے اس کو بے نقاب کرنا ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون سینیٹر طلال چودھری نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ اور توشہ کے پیسے واپس کیے جائیں، نہ NRO ملے گا نہ گناہوں کی معافی ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام کے ٹیکسز کے پیسے سے PTI جلسے کر رہی ہے۔ جلسے میں کسی نے ملکی معیشت پر بات نہیں کی، صرف اڈیالہ جیل کے مجرم کا رونا رویا گیا۔ 9 مئی ہو یا پھر 190 ملین، جلد سے ایک نہیں آپ 100 کریں، تحریک چلائیں، دھرنے دیں، نہ NRO ملے گا نہ گناہوں کی معافی ملے گی۔ اور یہ جو بھڑکے ہیں یہ نہ مارے، یہ نہیں ممکن کہ وہ پیسے جو KPK کے لوگوں پہ لگنے چاہیے تھے ان سے جلسے ہوں، ان سے جلوس ہو، ان سے اسلام آباد پہ چڑھائی ہو، اور یہ سب کس سے ہو رہا ہے؟ KPK کے حکومت کے پیسوں سے۔ اسلام آباد پولیس پر حملہ کیا گیا، اور حملہ بھی ان لوگوں نے کیا جو کہ KPK وزیر اعلیٰ کی قیادت میں اسلام آباد آئے۔ PTI کا ایجنڈا فتنہ، فساد، بد تہذیبی اور توڑ پھوڑ کے سوا کچھ نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ فتنہ گینگ پاکستان کا امن تباہ کرنے کی سازشوں میں مصروف ہے۔ کل کا جلسہ کرنے والوں نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی۔ تفصیل بتائیں گے محمد اویس کھٹانا۔ لاہور میں محکمہ تعلقات عامہ پنجاب کے دفتر میں پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا کہ PTI کا کل کا جلسہ ان کی منفی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ پوری قوم نے دیکھ لیا کہ یہ جب بھی باہر نکلیں گے صرف فساد اور بد تہذیبی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ سے پرامن جلسے کی اجازت لے کر بعد ازاں قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا گیا، اور وہ میلا مویشیاں جو ہے اس نے اپنی تمام روایات کو برقرار رکھا۔ جو تقریریں وہاں ہوئیں، جو حرکتیں وہاں ہوئیں، جو باتیں وہاں ہوئیں، وہ انسانوں کی تو تھی نہیں، وہ صرف جانور ہی کر سکتے ہیں۔ اس پارٹی کے جو بلوائی ہیں انہوں نے اسلام آباد میں رہ کے سچ کر کے دکھایا ہے کہ جو خدشات ان کے بارے میں کل بھی تھے وہ آج بھی ہیں، اور یہ جب نکلتے ہیں یہ صرف فساد کر سکتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا کہ اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں پر پتھراؤ کر کے زخمی کیا گیا فتنہ گینگ پاکستان کا امن تباہ کرنے کی سازشوں میں مصروف ہے۔ انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور نے پنجاب پر لشکر کشی کی دھمکی دی، اب ان سے انہی کی زبان میں بات کی جائے گی۔ کل اچکزئی صاحب جو ان کے سربراہ بنائے گئے ہیں، انہوں نے ان کو کل بدتمیز اور غیر منظم جماعت کہہ دیا۔ کل امین گنڈا پور نے پھر سے اپنی خاندانی تربیت دکھائی، یہ کہتے ہوئے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، چونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ اس آدمی کا بدتمیزی کرنا، گندی زبان عورتوں کے بارے میں استعمال کرنا، دھمکیاں دینا، اس کا پرانا طریقہ واردات ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ہم صوبوں کی محبتوں کے امین ہیں، ریاست کمزور نہیں ہے، فتنہ فساد کرنے والوں کو امن و امان خراب کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ محمد اویس کھٹانا، PTV نیوز، لاہور۔ معدنیات اور کان کنی سے متعلق پیٹرولیم ڈویژن کی سرگرمیاں SIFC کے تعاون سے پیٹرولیم ڈویژن کی سرگرمیوں میں گزشتہ چند ہفتوں کے دوران خاطر خواہ پیش رفت ہوئی ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ وزارت خارجہ کے ساتھ مل کر سعودی عرب اور چین کے سٹیک ہولڈرز سے رابطے بڑھائیں اور آئندہ اجلاس میں پاکستان کے آف شور بلاکس پر متفقہ موقف پیش کریں۔ پیٹرولیم ڈویژن کو 5 جون 2024 کو کی آڈٹ رپورٹ میں بیان کی گئی خامیوں کو دور کرنے اور منصوبہ بندی کے عمل میں تمام صوبوں کو شامل کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ خصوصی سیکرٹری پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق وفاقی حکومت کے معدنیات سے متعلق تمام منصوبے نئے منرل ونگ میں منتقل کیے گئے ہیں، جن کے لیے کنسلٹنٹس کی خدمات لی جا رہی ہیں۔ پیٹرولیم ڈویژن کو ترکمانستان سے LPG کی درآمد کے لیے وزارت خارجہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ریکوڈک پروجیکٹ پاکستان میں جدید کان کنی اور پروسیسنگ ٹیکنالوجیز کو متعارف کروا رہا ہے، جس سے تکنیکی مہارت اور ٹیکنالوجی کو فروغ ملے گا۔ ماہ اگست ملک کی معیشت کے لیے بہترین مہینہ ثابت ہوا ہے، جس میں افراط زر کی شرح میں کمی اور برآمدات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں سدرہ فاطمہ۔
माह अगस्त में मुल्की इक़्तिसादी अशारियों में नुमाया पेशरफ्त हुई। अफराद ज़र की शरह 9.6% तक कम हो गई है, जो गुज़िश्ता 34 माह के दौरान कम तरीन सतह है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि मईशत की दुरुस्त सिमत में गामज़न होने से रवा मालियाती खसारे में कमी आई है। जो हमारी बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसमें काफ़ी बेहतरी वाक़ हो सकती है। तो ओवरऑल मईशत जो है इस प्रेजेंट सिनारियो में जहाँ इन्फ्लेशन कम हो रहा है, दुनिया भर में जो है कमोडिटी प्राइसेस नीचे जा रही हैं, मेटल की प्राइसेस नीचे जा रही हैं, ऑयल की प्राइसेस नीचे जा रही हैं, तो ये सारी कंबाइंड होकर पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए एक बहुत बड़ी खुशाइंद बात है। गुज़िश्ता माह में बरामदात में 14% इजाफा हुआ है, जबकि अगस्त 2024 में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $2.7 अरब को पहुँच गयी, जो सालाना बुनियादों पर 16%, जबकि माहाना बुनियादों पर 19% ज्यादा हैं। अगस्त 2024 में इम्पोर्ट्स $4.4 अरब हैं, जो कि सालाना बुनियादों पर 1% कम है। 9.6% के ऊपर जो है वो हमारा इन्फ्लेशन का फिगर आ गया है, तो ये बड़ी खुशाइंद बात है और इसमें जो है ना वो आइंदा जो है मज़ीद कमी होते हुए नज़र आ रही है। आप पिछले 2 महीने में जुलाई और अगस्त की जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो लास्ट टाइम के जुलाई अगस्त से तकरीबन $600 मिलियन जो है वो ज़्यादा हैं। हुकूमती मौशी इस्लाहात के मस्बत नताइज आवाम तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में भी बेहतरी आई है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक अवाम से है। सिद्रा फातिमा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। हुकूमत सियाहत के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दाम कर रही है। नई पॉलिसी के तहत 126 ममालिक के ताजरों और सयाहों से वीज़ा फीस नहीं ली जाएगी। वकार हैदर की रिपोर्ट देखिए। कुदरती हुसन और तारीखी विरसे से मालामाल ये है पाकिस्तान, जहाँ के हसीन नज़ारे दिल लुभाते हैं और अपनी ओर बुलाते हैं। गवादर से गिलगित बल्तिस्तान तक हर इलाका ही अपनी अलग पहचान, रस्म रवाज और सकाफत लिए खुद को दूसरों से मुमताज करता है। सिंध की तहजीब हो या फिर बुद्ध मत, कदीम अदवार से आज तक हर रंग पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान एक ऐसा खूबसूरत मुल्क है प्लानिट पे कि बहुत ही यूनिक, -50 से लेकर +50 एक ही वक्त में। मोयंजोदारो है 5000 BC का, हमारा मेहरगढ़ है बलूचिस्तान में, और उसके अलावा हमारा हड़प्पा, ये तो हमारा प्री हिस्टोरिक मतलब है। ये दुनिया में बहुत कम ममालिक है जहाँ पे इस तरह के साइट्स अवेलेबल है। इसके साथ हमारा गंदारा सिविलाइजेशन है, उसके बाद हमारा इंडस सिविलाइजेशन है। हमारा पाकिस्तान में K2 समेत हिमालय के सिलसिले में बेपनाह सियाहती इलाके मौजूद हैं, इसलिए पाकिस्तान के सिलसिले को थर्ड पोल भी कहा जाता है। एडवेंचर टूरिज्म में पाकिस्तान अपना सानी नहीं रखता और हुकूमत सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए बेहतरीन इक़दाम उठा रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने अभी 126 ममालिक के लिए जो वीज़ा फ्री मतलब वीज़े का फीस भी फ्री कर दिया, वेव ऑफ कर दिया, कहीं पे भी वेव ऑफ नहीं है। इस साल जो 2024 में इंटरनेशनल टूरिज्म ने बहुत बूस्ट किया है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में इस वक्त प्रमोशन हो रहा है वो एडवेंचर टूरिज़म के लिए हो रहा है। एडवेंचर टूरिज़म गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, ये इलाके हमारे अल्लाह ताला ने हमें 5-8 हज़ार मीटर के पहाड़ दिए इस मुल्क को। सियाहत के हवाले से हुकूमती इक़दाम काबिल तहसीन हैं। इससे न सिर्फ पाकिस्तान का आलमी सतह पर तशख़्ख़ुस बेहतर होगा, बल्कि पाकिस्तान में सियाहत को मज़ीद फ़रोग़ हासिल होगा। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा है कि अवाम फौरी और सस्ता इंसाफ चाहते हैं। मफाद आमा के मुकदमात की समात बराह रास्त नशर करने का सिलसिला शुरू किया ताकि आवाम TV चैनल्स और सोशल मीडिया के तबसरों के बजाय सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी और उसकी शफाफियत का खुद जायजा ले सकें। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल के मौके पर होने वाली तकरीब का अहवाल बता रहे हैं एजाज हुसैन। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि गलतियों का एतराफ़ किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। हर इदारे में बेहतरी की गुंजाइश होती है। अदालती उमूर में बेहतरी लाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब मनपसंद बेंचेस में मुकदमात मुकर्रर कराने और बिला वजह इल्तवाल देने की रवायत ख़त्म हो चुकी। सोच समझकर मुकदमात मुकर्रर किए जाएं तो शफाफियत नहीं रहती। मुकदमात का रोस्टर बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को सौंपा गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट का फैसला था कि सब इख्तियारात चीफ जस्टिस के पास ना हो, जिसे अदालत ने सराहा। अब मुकदमात की समाअत के लिए बेंचेस की तश्कील के फैसले चीफ जस्टिस के अलावा 2 सीनियर तरीन जजेस मिलकर करते हैं। हम अवाम के लिए हैं इधर। अवाम हमसे क्या चाहती है कि हमारे मुकदमे जल्द से जल्द तयन हो। आप दूसरों से मांगिए शफाफियत और दूसरों का करें एहतजाब और अपना और ख़ुद का ना करें, तो बात में कुछ वज़न नहीं होती है और आपके फ़ैसलों की कदर भी नहीं की जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट
कई सालों से पूरा नहीं था, तो इसमें हमने जजेस पूरे किए। सिर्फ प्लान्स से केसेस कम नहीं होंगे, जजेस को भी काम करना है। तो ये मैं अपने आप पे भी उंगली उठा रहा हूँ कि कोशिश की जाए कि तमाम कॉज लिस्ट ख़त्म की जाए। तकरीब से खिताब करते हुए अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि अदालत को इंसाफ की फरहमी से मुंसलिक इदारों के साथ मिलकर ज़ेर इल्तवा मुकदमात में इजाफा रोकने और उन्हें कम करने के लिए मुनज़्ज़म तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन फारूक इशनाइक ने कहा कि निज़ाम अदल के मयार का इन्हिसार जजेस की काबिलियत पर है। ज़रूरी नौइयत के मुकदमात को बिला तफरीक 14 रोज़ में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद कम करने के लिए जजेस की तैनातियों के सिलसिले में जुडिशल कमीशन के कवायद में तरमीम को तरजीह देनी चाहिए। एजाज हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जंग का नवा रोज 9 सितंबर 1965 पाक फौज ने भारत को 3 महाजों पर नाकाबिले फरामोश शिकस्त से दो चार किया। पाकिस्तानी फौज ने नारोवाल के करीब जसर पुल का दिफा करते हुए भारतीय फौजों को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिसमें लेफ्टिनेंट कलीम महमूद ने बहादुरी से लड़ते हुए शहादत पाई। भारतीय इंजीनियर्स की टीम को पाक फौज ने सोनामर्ग के मगरबी मकाम पर हमला करके भारी नुकसान पहुंचाया। भारतीय पठानकोट और जोधपुर एयरबेस पाकिस्तानी फौज के हाथों मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। पाकिस्तानी शाहीनों के हाथों 28 भारतीय जहाज हवा में, 2 एंटी एयरक्राफ्ट गन से 36 जमीन पर खड़े और उसके अलावा 15 जहाज कलाईकोंडा एयरबेस पर तबाह कर दिए गए। भारत को तमाम मुहाजों पर शिकस्त का सामना था। भारतीय फौज पसपाई का शिकार हो चुकी थी, जबकि पाक फौज के जवानों ने हिम्मत और दलेरी की नई दास्तानें रकम की। 1965 की जंग के 9वें रोज पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल साहिबजादा गुल और मेजर मोहम्मद अशरफ खान ने दुश्मन के खिलाफ जवामर्दी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। मेजर मोहम्मद अशरफ खान का ताल्लुक सुपोर्ट बटालियन से था और उनकी जिम्मेदारियों में सियालकोट का दिफा शामिल था। 9 सितंबर को भारत ने सियालकोट कैंट की जानिब पेशकदमी शुरू की। मेजर मोहम्मद अशरफ खान ने दुश्मन की पेशकदमी को रोकते हुए उनके 2 टैंक तबाह कर दिए। मेजर मोहम्मद अशरफ अपनी जीप पर मैदान जंग का जायजा ले रहे थे कि दुश्मन का फायर लगने से जाम शहादत नोश कर गए। लेफ्टिनेंट कर्नल साहिबजाद गुल आर्मर रेजिमेंट की क़यादत कर रहे थे। उन्होंने कसूर की जानिब पेशकदमी करते दुश्मन को बहादुरी के साथ बॉर्डर की जानिब धकेल दिया। 9 सितंबर को लेफ्टिनेंट कर्नल साहिबजाद ने वालथवा रेलवे स्टेशन पर कब्जा कर लिया। दुश्मन ने रेलवे स्टेशन का कंट्रोल हासिल करने के लिए भरपूर हमला किया, जिसके दिफा के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल साहिबजाद गुल शहीद हो गए। लेफ्टिनेंट कर्नल साहिबजाद गुल को बहादुरी के एतराफ में बाद शहादत सितारा जुर्रत से नवाजा गया। भारत जोग्राफियाई हैसियत और आबादी का तनासुब तब्दील करने की मजमूम कोशिशों में मसरूफ है। कश्मीरी रहनुमा मशाल मलिक ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 50 लाख से ज्यादा भारतीयों को मकबूजा कश्मीर के डोमिसाइल दिए गए हैं। भारत को यासीन मलिक, शबीर शाह समेत तमाम हुर्रियत क़यादत को रिहा करना होगा। सारी हमारी जो हुर्रियत की क़यादत है वो जेलों के अंदर बंद है, या उनको कत्ल कर दिया गया है, या उन्हें शहीद कर दिया गया, जहर दे दिया गया है, जेलों में झूठे मुकदमों में उनको बंद किया हुआ है, या तो हमारी जो हुर्रियत की जो क़यादत की जो 2nd या 3rd टियर लीडरशिप है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन पे बैन है। तो सारा का सारा जो इस कैंपेन को, तहरीक आज़ादी की जो कैंपेन है, कश्मीरियों की आवाज़ दुनिया तक पहुंचाने के लिए मेजर रोल है इस वक्त पाकिस्तान का, और जो हमारा कश्मीरी डायस्पोरा है और आज़ाद कश्मीर जो बेस कैंप है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला राजौरी में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फोर्सेज ने नौजवानों को जिला के इलाके नौशहरा में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान एक जाली मुकाबले में शहीद किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय जेलों में नजरबंद कश्मीरियों की हालत इज़हार पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए उनकी फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की कि वो मुदाखलत करे और गैर कानूनी तौर पर नजरबंद तमाम कश्मीरियों की रिहाई को यकीनी बनाए। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के रहनुमा महमूद अहमद सागर ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस के नाम एक ख़त में उन पर जोर दिया कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में नाम नहाद असम्बली इंतखाबात का ड्रामा रचाने से भारत को रोकें, जिनमें गैर जानिबदारी और शफाफियत का फुकदान है। दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि दफ़ा 370 की मनसूखी से मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसल्लह मुज़ाहमत दोबारा शुरू हुई है, जिसके अस्करियत पसंदी ख़त्म होने के बीजेपी के दावों की नफ़ी होती है। उन्होंने बीजेपी के मंशूर को खोखले वादों पर मबनी करार देते हुए कहा कि भारत की आज़ादी में मुसलमानों का यकसां किरदार है।
इलेक्शन से कबल मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मोदी सरकार की शिद्दत पसंदी में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। मोदी सरकार गुज़िश्ता एक दिहाई से अपनी इंतहा पसंदाना पॉलिसियों की वजह से खित्ते का अमन तबाह कर रही है। मोदी सरकार ने 2019 में मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत मनसूख करके जारियत के नए दरवाजे खोल दिए थे। 2019 से अब तक भारतीय फोर्सेज ने 800 से ज़्यादा कश्मीरियों को शहीद किया। भारत एक दफ़ा फिर 18 सितंबर 2024 को मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम के मुस्तकबिल का फैसला नाम निहाद इलेक्शन के जरिए करने जा रहा है। इलेक्शन में मतलूबा नताइज के हुसूल के लिए मोदी सरकार मकबूजा वादी कश्मीर में जानबूझकर हालात खराब कर रही है। इलेक्शन से कबल मकबूजा कश्मीर में 400 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बांग्लादेश के जंगी जराइम के ट्रिब्यूनल ने माजूल वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद पर कत्लेआम का इल्ज़ाम लगाते हुए भारत से उनकी हवालगी का मुतालबा किया है। बांग्लादेश में तलबा की ज़रिए क़ियादत मुज़ाहिरों के बाद शेख हसीना वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफ़ा देकर 5 अगस्त को हेलीकॉप्टर के जरिए भारत फरार हो गई थी। बांग्लादेश के बैनुल-अक़वामी फौजदारी ट्रिब्यूनल के चीफ प्रोसिक्यूटर मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने सहाफ़ियों को बताया कि मरकज़ी मुजरिम मुल्क से फरार हैं, इसलिए हम उन्हें बांग्लादेश वापस लाने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे। खुराक के आलमी इदारे ने कहा है कि गजा में 22 लाख फ़लस्तीनियों को फौरी तौर पर खुराक की ज़रूरत है। फ़लस्तीन में नए तालीमी साल का आगाज़ हो गया है। आज मगरबी किनारे में तलबा स्कूल गए, ताहम गजा में 6,30,000 से ज़्यादा बच्चे जंग की वजह से स्कूल्स को न लौट सके। गजा में इसराइली हमलों में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 33 फ़लस्तीनी शहीद और 147 ज़ख्मी हो गए। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 40,972 हो गई है। इसराइली बमबारी से वस्ती और जनूबी गजा में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल हो गई है। गजा में फ़लस्तीनी धड़े ने कहा है कि इसने जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए कोई नई शराइत पेश नहीं की। दूसरी तरफ इसराइल ने शाम के इलाके मस्याफ पर हमला किया, जिसमें 14 अफराद हलाक और 43 ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने लबनान पर भी फ़ज़ाई हमला किया है, जिसमें 4 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। तफसील बता रहे हैं सईद वजीर। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा रहती दुनिया तक के तमाम इंसानों के लिए मशअल राह है। ईद मिलादुन नबी मुसलमानों के लिए खुशी का दिन है, जिसे दुनिया भर में अकीदत के साथ मनाया जाता है। अशकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन की मुनासबत से शहर भर की मसाजिद गली कोचों को झंडी और कुमकुमों से सजाते हैं। इस माह मुकद्दस में कुरान खानी और महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम भी किया जाता है। मिलाद जो है हमें इस अंदाज में मनाना चाहिए कि इस दिन हमें अहद करना चाहिए कि अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए। जो मैं रास्ते देकर जा रहा हूँ, जो मैं शरीयत देकर जा रहा हूँ, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आने के बाद दुनिया से जहालत के अंधेरे मिट गए और इस्लाम की रोशनी से दुनिया मुनव्वर हो गई। आपके आने से दुनिया के अंदर जो एक रूहानी तौर पर अंधेरा था, वो अंधेरा ख़त्म हुआ, दुनिया रोशनियों में आ गई। दुनिया को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नेमत मिल गई। उनके लिए महफिल कायम करनी चाहिए, उसमें रसूलुल्लाह सल्लम का तज़किरा करना चाहिए ताकि उम्मत तक रसूलुल्लाह सल्लम की सीरत जाए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत व मोहब्बत का तकाजा है कि आपकी सीरत तैयबा का महज जिक्र ही न किया जाए, बल्कि आपकी तालीमात पर अमल करके ही दुनिया को अमन का गवारा बनाया जा सकता है। सईद वजीर, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, आपको आगाह करते चले, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, खित्ता पोटोहार, कश्मीर और बाराई खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आप खबरनामे में जान सकेंगे खेल की दुनिया का हवाल।
खेलों की खबरों का आगाज करें। आपको बताएं एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में पाकिस्तान और जनूबी कोरिया का मुकाबला बराबर रहा। चीन के शहर होलनब्योर में जारी इवेंट में पाकिस्तान और कोरिया के माबैन खेला गया मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। कोरिया की जानिब से पहला गोल 16वें मिनट में जिग वैंग ने किया, जिससे 59वें मिनट में पाकिस्तान के हनान शाहिद ने बराबर कर दिया। 28 सेकंड्स के बाद हनान शाहिद ने एक और गोल करके पाकिस्तान को बढ़ती दिलाई, ताहम कोरिया के सिंग ह्योन किम ने मुकाबला बराबर कर दिया। हनान शाहिद मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इवेंट में पाकिस्तान का मलेशिया के साथ पहला मैच भी 2-2 गोल से बराबर रहा था। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच 11 सितंबर को जापान के खिलाफ खेलेगा। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान के अलावा भारत, कोरिया, मलेशिया, जापान और चीन की टीमें शरीक हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का एक और तारीखी एजाज़, बरतानिया में होने वाली शूटिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी टीम ने 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल्स जीत लिए। बरतानिया में होने वाली लॉन्ग रेंज शूटिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 18 निशानेबाजों समेत 18 ममालिक के 160 आलमी मयार के शूटर्स ने हिस्सा लिया। पाकिस्तानी टीम ने 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 कांस्य के तमगे अपने नाम किए। गोल्ड मेडल जीतने वालों में जुनैद खटक और अहमद जावेद शामिल थे। FTR कैटेगरी में पाकिस्तानी टीम ने इनफरादी तमगों के मुताबिक इनाम जीते। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तारीख के पहले चैंपियंस कप के आगाज में 3 रोज बाकी रह गए हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने फैसलाबाद में चैंपियंस कप टीमों के मेंटोर्स मिसबाउल हक, शोएब मलिक, वकार यूनुस, सरफराज अहमद और सकलान मुश्ताक ने मुलाकात की। मुलाकात में चैंपियंस कप के इंतजामात पर तफसीली मशावरत की गई। चेयरमैन PCB ने इवेंट के लिए पिचेस और ग्राउंड का मयार बेहतर बनाने की यकीन दहानी कराई। मोहसिन नकवी ने कहा कि चैंपियंस कप को पाकिस्तान का ब्रांड बनाने के लिए मेंटोर्स पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चैंपियंस कप से कबल चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने इंतजामात का जायजा लेने के लिए इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद का दौरा किया। चेयरमैन PCB ने ग्राउंड और इंक्लोजर्स का मुआयना किया और इवेंट के लिए किए गए इकदामात का जायजा लिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों का प्रैक्टिस सेशन भी देखा। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि चैंपियंस कप में शायकीन क्रिकेट के लिए बेहतरीन इंतजामात किए जाएं। चेयरमैन PCB ने उम्मीद जाहिर की कि फैसलाबाद के लोग चैंपियंस कप के मैचेस को भरपूर इंजॉय करेंगे। लायंस के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने कहा है कि चैंपियंस वनडे कप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी है। इवेंट से सिलेक्शन के लिए प्लेयर्स के पूल में इजाफा होगा। चैंपियंस वनडे कप के हवाले से जारी वीडियो पैगाम में शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि टीम में मुंतखब होने के लिए नौजवान खिलाड़ी होने चाहिए जो हर वक्त खेलने के लिए तैयार हों। उन्होंने कहा कि वो नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए तैयार हैं और डोमेस्टिक खिलाड़ियों से सीखना भी चाहते हैं। चैंपियंस वनडे कप 12 से 29 सितंबर तक फैसलाबाद में खेला जाएगा। श्रीलंका ने इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट में 8 विकेटों से शिकस्त दी। 3 मैचेस की सीरीज इंग्लैंड ने 2-1 से जीत ली। ओवल में खेले गए टेस्ट के आखिरी रोज श्रीलंका ने 219 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ओपनर पैथम निसांका ने 127 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। कौशल मेंडिस 39 और एंजेलो मैथ्यूज 32 रन बनाकर नुमाया रहे। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 325 रन बनाए थे, जबकि दूसरी इनिंग्स में मेजबान टीम 156 रन बनाकर आउट हो गई थी। श्रीलंका ने पहली इनिंग्स में 263 रन स्कोर किए थे। श्रीलंका के पैथम निसांका मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। बहुत शुक्रिया अनीस आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें हमारी टीम की हमरा इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में आपसे मुलाकात होगी हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहिए। आपका शुक्रिया।